Hello, good morning, students. You all welcome in Asian College of Science and Commerce, and today we are going to see the content of. Hello, good morning, students. You all welcome in Asian College of Science and Commerce, and today we are going to see entrepreneurship development. What is mean by entrepreneur? In today's lecture, we are going to see what is mean by entrepreneur, what is mean by manager, and what is mean by entrepreneur. Okay, so see what is mean by entrepreneur. The definition of the terms of entrepreneur is there are a number of definitions are given here. I'll teach you only the two definition from this given definition. Here is given a six definition. I'll explain you all the six definition, but you should learn or keep in the mind only two definition at least. Okay, so first definition is Richard Cantillon. Okay, Richard Cantillon, he says that an entrepreneur is a person who pay a certain price of product to resell it at an uncertain price. म्हणजे एंटरप्रिनियर कोण असतो? हा असा पर्सन आहे जो पे करतो सर्टन प्राईस फॉर द प्रोडक्ट टू रिसेल. त्याच्या जवळचं जे काही प्रोडक्ट आहे ते रिसेल करण्यासाठी जो पैसे पे करतो दॅट इज द एंटरप्रिनियर ॲट ॲन अनसर्टन प्राईस, thereby making a decision about obtaining and using the resources while consulting admitting the risk of entrepreneur. कुठल्याही प्रकारची रिस्क घेण्यापूर्वी तो पूर्णपणे विचार करत असतो. ओके, नेक्स्ट आहे वेबस्टर. ही छोटीशी डेफिनेशन आहे. ही डेफिनेशन तुम्ही रट्टा मारून ठेवू शकता. तर बघा, एंटरप्रिनियर इज वन हू इज ॲज्युम द रिस्क अँड मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस. एंटरप्रिनियर इज वन ऑफ द पर्सन दॅट हू कॅन ॲज्युम द रिस्क. एंटरप्रिनियर काय करत असतो? रिस्क घेत असतो. ही इज रेडी टू टेक अ रिस्क. ही इज रेडी टू फेस द फ्युचर रिस्क इन हिज ओन बिझनेस. ओके, अँड मॅनेजमेंट ऑफ बिझनेस. JB says an entrepreneur is an economic agent who entities all means of thus produced a product by selling the product in a market. He pays rent of land, wages to the labor, interest on capital, and what remains is this profit. He shifts the economic resource out of an area of lower into an area of higher productivity and greater yield. Okay, Schumpeter. Entrepreneurs are innovators who use a process of shattering the status quo of existing product and services to set up a new product and new services. Okay, entrepreneur is a person who set up new product, new business, new strategies, new methodologies, okay, for his own business. That is called entrepreneur. David McClelland. He says that an entrepreneur is a person with high need of achievement. He is energetic and moderate risk taker. He is a moderate risk taker. Peter Drucker, one of the great author, Peter Drucker says that an entrepreneur searches for change, responds to it, and exhibits the opportunities. Innovation is a specific tool of an entrepreneur. Innovation is one of the specific tools for the entrepreneur. Hence, an effective entrepreneur converts
a source into a resources. Hence, an effective entrepreneur. Effective entrepreneur converts a source into resources. A true entrepreneur is thus one who combines into factors in such manner that will generate a greater output. तुम्हाला जास्तीत जास्त आउटपुट त्यातून मिळत असतो. This greater output from various input factors will result in creating wealth of the society. ओके, त्यामुळे सोसायटीची वेल्थ ही चेंज होत जाते. ओके, the next one is given here. In the end of it is decided that the concept of managerचे काय कन्सेप्ट आहे. ओके, the entrepreneurs involved while the manager administration. मॅनेजर काय असतो, इन्वॉल्ड असतो एंटरप्रिनरशिप प्रोग्राममध्ये. द एंटरप्रिनियर सी द अपॉर्च्युनिटी. एंटरप्रिनियर काय करत असतो, अपॉर्च्युनिटी बघत असतो. द मॅनेजर सीज द predicament. The entrepreneur develops something based on an absorbed opportunity and the managers run on organization. A manager is one who deals with the everyday efforts and operates an activities venture. Manager must use the entrepreneurial talent in order to manage and invent new things. Okay. Now see the concept of entrepreneur. What is mean by here we see what is manager. Now we see entrepreneur. Okay, what is mean by entrepreneur? The term entrepreneur was term in America during the 17th centuries. There was the entrepreneur term was derived. Okay, many senior executives of huge companies in America left their job to start their own venture because their employers in these corporations were not open a new idea. ओके, कधी ही टर्म चालू झाली आहे 17व्या शतकामध्ये अमेरिकेमध्ये. एंटरप्रिनियर ही टर्म चालू झाली, एंट्राप्रिनियर. आणि ती कशामुळे चालू झाली की त्यावेळची एक कंडिशन अशी होती की ज्या वेळेला सगळ्या लोकांचे जॉब काय लेफ्ट देअर जॉब टू स्टार्ट देअर ओन व्हेंचर्स. प्रत्येकाने आपले स्वतःचे ओन व्हेंचर चालू केले बिकॉज देअर एम्प्लॉयमेंट इन दीज कॉर्पोरेशन्स वेअर नॉट ओपन अ न्यू आयडिया. कारण त्याच्यामध्ये नवीन काही आयडियाज ओपन होत नव्हत्या. न्यू ॲडव्हेंचर्स, सम ऑफ देम वेअर इन फोर्स combinations to the corporations they left a few years ago. These kind of entrepreneurs come to be known as entrepreneurs. Okay, such business brain drain is a global phenomena and it's not only confident to the United States मध्ये ही चालू झालं. Manufacturers thought the world started during the way of stopping their brilliant executives from leaving their companies. An American management experts, Clifford Pint III wrote his famous book Entrepreneuring in 1985 and use them entrepreneurs to be explain the people who left there will be paid executive position to start their own entrepreneur. Okay, that is entrepreneur. There is given a lengthy process, but you should be understood the concept of entrepreneur in these few words. Okay, so this is the difference between entrepreneur, managers and entrepreneur. Okay, so I think all you got about entrepreneur and entrepreneur. Next we will going to see the difference between entrepreneur and managers in the pointing method. Okay, so see, number 1, primary motives. What will be the primary motives for the entrepreneur and entrepreneur? The entrepreneur is desired freedom, goals oriented, independent and self motivated. एंटरप्रिनियर कसा असला पाहिजे, तो डिझायर्ड असला पाहिजे, त्याच्या डोक्यामध्ये नवीन नवीन कल्पना असल्या पाहिजे, तो फ्रीडम त्याला मिळालं पाहिजे.
गोल ओरिएंटेड, त्याचे स्वतःचे गोल्स असतात. इंडिपेंडन्स असतो तो कोणावरही डिपेंड नसतो आणि सेल्फ मोटिवेटेड असतो, जो स्वतःला मोटिवेट करत असतो. एंट्राप्रिनियर कोण असतो? डिझायर्ड फ्रीडम, त्याला पण फ्रीडम लागतंच. एंट्री टू कॉर्पोरेट रिसोर्स, तो कॉर्पोरेट रिसोर्स थ्रू याच्यामध्ये एंटर होतो. गोल ओरिएंटेड असतो, सेल्फ मोटिवेटेडसुद्धा असतो, बट ऑल्सो रिॲक्ट टू द कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स अँड क्रेडिट्स, पण तो अपेक्षा करत असतो कॉर्पोरेट्स रिवॉर्ड्स आणि कॉर्पोरेटकडून मिळणाऱ्या क्रेडिट्सची. आणि मॅनेजर कोण असतो? मॅनेजर डिझायर्ड प्रमोशन, मॅनेजरला नेहमी प्रमोशन डिझायर्ड असतं. अदर ट्रॅडिशनल कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स, पॉवर्स अँड मोटिवेटेड. ओके, नेक्स्ट आहे टाईम ओरिएंटेशन. तर यांचे टाईम ओरिएंटेशन्स काय आहे ते आता इथे आपल्याला बघायचे. एंटरप्रिनियरचं टाईम ओरिएंटेशन काय आहे? युजेस अँड इन्स्पायर्स of 5 to 10 years expansions of the business as guide, takes action about how to take the next steps along the way. आणि एंटरप्रिनियर काय असतो? एंड goal of 3 to 15 years depending on the types of enterprise pressure to meet the self-inflict and corporate timetables. Okay, manager is replied to quotes and budgets to weekly, monthly, quarterly and yearly planning, horizon and to next promotions or transfer. Next is टेंडन्सी टू ॲक्शन कशी घेतली गेली पाहिजे किंवा ॲक्शन घेण्याबाबतीत काय टेंडन्सी युटिलाइज केली गेली पाहिजे. सो सी, एंटरप्रिनियर अँड एंट्राप्रिनियर अँड मॅनेजर्स, द टेंडन्सी शुड बी टेकन ॲक्शन बाय द गेट्स हँड dirty, may distressed employee by doing their work all of a sudden. ओके, आणि एंटरप्रिनियरला काय असतं? गेट हँड डर्टी, त्याचे हात दे हँड डर्टी, माइट अंडरस्टँड हाऊ टू डिलाइट बट वेन रिक्वायर्ड डज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन. मॅनेजर डेलिगेट्स ॲक्शन, मेंटरिंग अँड रिपोर्टिंग टास्क अ लॉट ऑफ एनर्जी. स्किलमध्ये काय येतं? अंडरस्टँडेबल बिझनेस व्हेरी वेल. स्किल कसा असला पाहिजे? अंडरस्टँडेबल असला पाहिजे. एंटरप्रिनियरच्या दृष्टीने त्याचा बिझनेस स्किल्स कसा असला पाहिजे? अंडरस्टँडेबल असल्या पाहिजे. मोर बिझनेस इनसाईड दॅन द मॅनेजरियल अँड पॉलिटिकल स्किल. ओके, त्याच्या डोळ्यासमोर त्याचा बिझनेस हा मॅनेजरियल स्किल्सपेक्षा आणि पॉलिटिकल स्किल्सपेक्षाही पुढे असला पाहिजे. युजली टेक्निकली टायर्ड इफ इन टेक्निकल बिझनेस. ओके, may have to had a profit and loss responsibility in the company. नेक्स्ट आहे प्रोफेशनल मॅनेजमेंट युजली ट्रेंड इन द बिझनेस स्कूल, यूज ॲबस्ट्रॅक्ट ॲनालिटिकल इक्विपमेंट्स, पीपल मॅनेजमेंट अँड पॉलिटिकल स्किल. मॅनेजर्ससाठी काय असतं? प्रोफेशनल मॅनेजमेंट युजली ट्रेंड इन अ बिझनेस स्कूल, यूज ॲबस्ट्रॅक्ट ॲनालिटिकल टूल, पीपल मॅनेजमेंट अँड पॉलिटिकल स्किल. Attitude toward the courage and destiny, self-confident and positive, self-confidence, positive and courageous. Okay, sees other being in change of his or her density, can be forceful and determinants, but may be fearful of other capacity to do him or her. Self-confidence and courageous, many are skeptical about the system and positive about their ability to outwin. Focus of attend mainly on technology and marketplace, both inside and outside sales. Inside on requirement for venture and marketplace, but also ventures on its customs. Mainly one event inside the corporation. Attitude toward the risk.
Like responsible risk, invest a lot but expect to be successful. Entrepreneur का है like responsible risk usually not affairs for being a seed little responsible risk. Text presentation, use of market research, creates product that cannot be tested with the market research. Potential customers do not yet understand them. uh, Speak to customers and creates its own option. Entrepreneur does own market research and initiatives market assume like the entrepreneur. Has market students completed to explore need and guide product conceptualization. uh, After that I'll going to attach here some another videos that the help that will be helpful for you the clear the concept of entrepreneur, manager and entrepreneur. Okay, so enjoy with these videos. आज की वीडियो में मैं एंटरप्रेन्योर के साथ कंटिन्यू करूंगा एंड इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट सबसे पहला कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, एंड सेकंड एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम में इम्पोर्टेंस आ जाए या रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, दोनों में सेम चीज़ लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रोल इन इंडियन इकोनॉमी भी आ जाए तो भी सेम आंसर जा सकता है। एंटरप्रेन्योर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, इसमें बेसिकली क्या था कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, ये एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना जिसमें मैं प्रॉफिट कमा सकूं। तो जैसे कि हम अपने फर्स्ट ईयर में बिजनेस के बारे में पढ़ते आए थे कि उसका स्मॉल बिजनेसेस वगैरह का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, वही चीज़ें हम यहाँ पे सेम रिपीट कर रहे हैं। तो अगर किसी को याद हो तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो रहा है कि क्योंकि जितनी भी सेविंग्स वगैरह थी वो अब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं, एंड क्योंकि मेरी सेविंग्स मूव करी वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उस पर अर्न करेगा एंड कैपिटल फॉर्मेशन होगा जिससे कि मेरी इकोनॉमी डेवलप करेगी। इसमें अगर एग्जांपल लिखना हो तो रूरल एरियाज़ वगैरह का लिखा जाता है। काफ़ी सारे हमने रूरल एरियाज़ में देखा जहाँ पे नई नई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी गई, जैसे कि आंगनवाड़ी वगैरह, या मैं अगर राजस्थान वगैरह की साइड चला जाऊँ, राजस्थान साइड, तो काफ़ी सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह उन लोग उस साइड NGOs वगैरह, विलेजर्स वगैरह ने स्टार्ट किया जिससे कि वो अर्न कर पाए एंड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। इंक्रीजेस पर कैपिटल इनकम। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो नॉर्मल रिसोर्सेज वगैरह का इंश्योर करते हैं कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, एंड क्योंकि रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा अच्छी अर्निंग्स मिलेगी, एंड जब अर्निंग्स बढ़ जाएगी तो पर कैपिटल इनकम मेरी अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं कोई नई बिजनेस यूनिट स्टार्ट भी करूँ तो उसमें काफ़ी जनों को मैं जॉब्स भी प्रोवाइड करता हूँ एंड इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल आप लोग अपने आप को भी लेके ले सकते हो कि काफ़ी सारे हम लोग एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ पहले टायर 1 में दिखती थी, बट आफ्टर दिस स्टार्टअप कल्चर एंड एंटरप्रेन्योर कल्चर अब वो हमें टायर 2 में भी दिखने लग गई, टायर 3 में भी दिखने लग गई, एंड फर्दर डेवलपमेंट होती जा रही है। एक तरीके से बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आज जिस स्पीड से टायर 2 सिटीज ग्रो कर रही है, टायर 1 उतनी तेजी से नहीं कर रही, तो एक तरीके का बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एज अ कंट्री की कर रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस कब होगी, जब मैं दूसरी कंट्रीज में डिपेंड नहीं रहूँगा। एंड मैं डिपेंड कब नहीं रहूँगा कि जब मेरी
खुद की कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज वगैरह, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह नीड के अकॉर्डिंग बन पाए, यूटिलाइज हो पाए। तो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप से मैं सारी वो चीज़ें अचीव कर पाया, इसलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आई। एंड लास्ट, अगर और भी कुछ लिखना हो तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक स्टेप पे काम नहीं करता, बट बल्कि इंश्योर करता है कि कंप्लीट चेन को कंप्लीट कर पाए। जैसे कि अगर वो एक टेक्सटाइल का प्लांट लगा रहे किसी भी जगह, किसी भी नई जगह, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की भी अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उसके अलावा रॉ मटेरियल की भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगी। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों तरीके की लिंकेजेस को फुलफिल किया जा सकता है। तो ये था ऑल अबाउट एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन 7.5 में, तो इन 5-6 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे अबाउट फंक्शंस। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस आसान शब्दों में किया जाए, जो भी मेरा एक बिजनेस चलाने वाला इंडिविजुअल कर रहा है, सारा मेरा एंटरप्रेन्योर करेगा। चाहे उसमें मैनेजरियल फंक्शन हो गए, रिस्क बियरिंग हो जाएगा, बिजनेस डिसीजन हो जाएंगे, इनोवेशन के हो जाएंगे, वही सारे फंक्शंस मेरे एक एंटरप्रेन्योर के हैं। तो एग्ज़ाम में आ जाए तो सबसे पहले एजम्पशन ऑफ रिस्क। इवन इफ कितना भी रिस्क फ्री आइडिया लगे, बट रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता ही है। तो एंटरप्रेन्योर को रिस्क वगैरह अज्यूम करके चलने पड़ते हैं, आइडिया लगा के चलना है एंड फर्दर चीज़ों को एग्जीक्यूट भी करना है। तो सबसे पहले अजम्पशन ऑफ रिस्क। दूसरा, बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस रिलेटेड सारे डिसीजंस उसके फंक्शन के अंडर आते हैं कि भाई बिजनेस कब स्टार्ट करना है, क्या नाम रखना है, क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कब करने हैं, क्या क्वांटिटी रखनी है, लोकेशन क्या होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, लेआउट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें। तीसरा, मैनेजरियल डिसीजंस के। मैनेजरियल डिसीजंस में जो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें मैंने वीडियो में सारे किए थे कि टॉप मैनेजमेंट को एडवाइजरी वगैरह देते हैं, आइडियाज़ वगैरह, विजन वगैरह बनाते हैं पूरा बिजनेस को लेकर। तो बिजनेस को मैनेज करने के सारे डिसीजन, सारे फंक्शन एंटरप्रेन्योर भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है फंक्शन ऑफ इनोवेशन। जब तक मेरा इंडिविजुअल इनोवेट नहीं करेगा, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले पाएगा। जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, पहले जितनी भी टीचिंग होती थी वो सारी ऑफलाइन होती थी, बट विद यूट्यूब एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन टीचिंग चालू हो गई। इनोवेशन लेके आए तभी तो ये पॉसिबल हुआ। तो एंटरप्रेन्योर में ये चीज़ भी आ जाती है। ये था अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस के बाद अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, ये तो खुद से भी लिखे जाते हैं, बस फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स। भाई बिजनेस की मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने स्टार्ट तो कर लिया, बट मैंने उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं लिए। एग्जांपल ले लेते हैं, भाई डिजिटल पेमेंट का दिखा, डिजिटल पेमेंट का आगे बूम आना है, ऐसा आना चाहिए, बट मेरे पास वो ऐप बनाने के लिए टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो प्रॉब्लम है। सेकंड, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। मार्केट के ना मैंने एनालिसिस की, ना मैंने मार्केट रिसर्च करी, बस कूद पड़ा मार्केट के अंदर, मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। आजकल के काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को तो ये आ जाएगा। तीसरा, लैक ऑफ कैपिटल। भाई आइडिया है, स्किल्स है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो लैक ऑफ कैपिटल। इसलिए आजकल फंडिंग वंडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें शेयर दे देते हैं पैसों के बदले और आइडिया को चलाया जाता है। टाइम प्रोसेसेस या टाइम प्रेशर्स। भाई टाइम का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं आइडिया कब चलेगा, कब ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचेगा। काफ़ी जने वो प्रेशर नहीं ले पाते, तो वो प्रॉब्लम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। टाटा नैनो लेके आया, वेस्ट बंगाल में लगाना चाहा, बट ममता बनर्जी ने नहीं लगाने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स का इस समय सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लिखना हो तो यू कैन राइट अबाउट एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या है, जब स्टार्टअप्स कोई भी एंजल फंड वगैरह लेते हैं, पैसा लेते हैं किसी से भी, तो उस पर एक काफ़ी हैवी टैक्स लगता है, जिससे कि उनकी जो फंडिंग का पैसा है काफ़ी सारा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत सारे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स फेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस देखा इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसके बाद हम लोगों ने फंक्शंस देखे एंड लास्ट में प्रॉब्लम्स देखी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। Entrepreneur is a person who searches for change and respond to it by starting an enterprise. Entrepreneur एक पर्सन होता है जो चेंज के लिए सर्च करता है एनवायरनमेंट में, और उस चेंज को रिस्पॉन्स करने के लिए वो एक एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, ठीक है।
An entrepreneur introduces new idea, carries on new activities, coordinates the factors of production and describe how the business should run. अब एक entrepreneur क्या करता है, न्यू आइडियाज को इंट्रोड्यूस करता है, जो भी एनवायरमेंट से उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसको लेकर न्यू आइडिया बनाता है, वो न्यू एक्टिविटीज करता है उस आइडिया को करस्पॉन्ड में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को जुटाता है सारे और बताता है कि बिजनेस कैसे रन होना चाहिए उसका. ठीक है, तो ये होता है एंटरप्रेन्योर. अभी आ जाता है मैनेजर. मैनेजर का क्या कंसेप्ट होता है? A manager is one who deals with day-to-day affair of a going concern and operates in an existing enterprise. अब मैनेजर किसी भी कंपनी का वो हुआ जो डे टू डे अफेयर्स के साथ डील करता हो, किसी भी गोइंग कंसर्न के साथ, ठीक है, और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज में वो ऑपरेट करता है. Managers uses entrepreneurial skills in order to manage change and innovation to effectively deal with uncertain external environment of business. अब मैनेजर्स क्या करते हैं? entrepreneurial skills को यूज करते हैं चेंज और इनोवेशन को मैनेज करने के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो सकता है. अभी आ जाता है नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? An entrepreneur is an entrepreneur within an already established organization. This term is used to represent the new breed of corporate entrepreneurs. We can also call them as internal entrepreneurs. अब entrepreneur क्या होता है? किसी भी established organization के अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसमें से कुछ एम्प्लॉइज बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं उनके पास, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉइज को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. इनको कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर और इंटरनल एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं. ओके, दे आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पीपल वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब एक क्रिएटिव और इनोवेटिव पीपल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं. ओके, अभी आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक में, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है. तो देखते हैं यहाँ पे कुछ 5 डिफरेंसेस देखने वाले हैं हम. फर्स्ट डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का ऑन द बेसिस ऑफ वेंचर क्रिएशन. एन एंटरप्रेन्योर सेट्स अप अ न्यू वेंचर एंड रन्स इट, whereas a manager only runs an existing unit. प्रशासकीय अधिकारी होणं प्रत्येकाचं स्वप्न करता है और उसको रन करता है, लेकिन मैनेजर क्या करता है? पहले से एस्टेब्लिश्ड वेंचर में या पहले से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस में काम करता है. सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन. एंटरप्रेन्योरशिप इज अनदर नेम ऑफ इनोवेशन. Entrepreneur works to find new methods, products, etc. Whereas a manager is an employee of the business organization. He cannot operate independently. अब इनोवेशन की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप तो दूसरा नाम है इनोवेशन का. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? काम करता है न्यू मेथड्स को फाइंड करने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज को, न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है उसके साथ साथ, तो ये काम होता है एंटरप्रेन्योर का. लेकिन मैनेजर क्या होता है? एक एम्प्लॉय होता है बिजनेस का. ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करता, इसका इनोवेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है ज्यादा. ठीक है. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क टेकिंग. एन एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एंड फाइनेंशियल लॉसेस, whereas a manager takes less risks as compared to an entrepreneur. He is less tolerant to uncertainty. अब रिस्क की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर बहुत रिस्क लेता है किसी बिजनेस में. वो किसी भी, अगर वो बिजनेस में कोई फेलियर हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर खुद होगा. लेकिन मैनेजर क्या होता है? मैनेजर कम रिस्क लेता है एज कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योर. वो ज्यादा टॉलरेंट नहीं होता है, जो भी अनसर्टेनिटी होने वाली है ना, तो उसके प्रति वो ज्यादा टॉलरेंट नहीं होता है. तो ये होता है रिस्क टेकिंग के बेसिस पे. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस. एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स एंड रन्स हिज वेंचर इंडिपेंडेंटली. ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इज हिज ओन बॉस. Whereas a manager need not to be an innovator, he deals with day-to-day affairs of a going concern. ओके, अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को बताया गया है कि वो खुद का वेंचर स्टार्ट करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है अपने वेंचर के प्रति, वो कुछ भी कर सकता है. ही सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और खुद का बॉस होता है वो. लेकिन मैनेजर क्या होता है? मैनेजर जरूरी नहीं है हर मैनेजर कोई इनोवेटर ही हो. वो डे टू डे अफेयर्स के साथ डील करता है गोइंग कंसर्न, कोई भी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड. एंटरप्रेन्योर तो इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको अपना by profits, he may even suffer a loss. Whereas a manager is motivated by rewards or incentives, his salary cannot be negative. अब entrepreneur की बात की जाए तो प्रॉफिट जैसे जैसे उसको मिलता है वो वैसे वैसे मोटिवेट होगा, लेकिन उसको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, कभी उसको घाटा भी हो सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है उसका प्रॉफिट. लेकिन मैनेजर के केस में क्या होगा? मैनेजर हमेशा रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव से मोटिवेट होंगे. ठीक है, उनकी सैलरी कभी नेगेटिव नहीं होगी, बिजनेस को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनकी एक फिक्स सैलरी होती है जिसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं बिजनेस के लिए, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज. ये लास्ट डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है.
तो on the basis of change, an entrepreneur is responsible to external environments and is always prepared to change. Whereas a manager may not very receptive to change unless he is enterprising. अब चेंज की बात की जाए तो entrepreneur external environment में जो भी changes हो रहे हैं ना उसके प्रति वो मतलब प्रिपेयर रहेगा पहले से कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम वो इवेल्युएट करता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा कि अभी कुछ चेंज हो सकता है. लेकिन जो मैनेजर होता है वो उतना रिसेप्टिव नहीं होता है, उतना प्रभावी नहीं होता है चेंज के प्रति. ओके, तो यही था डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में. अभी देखते हैं डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर वर्क एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस. बिल्कुल सही बात है, हमने कंसेप्ट में पढ़ा था. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा बंदा जो अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज कर रहा है, बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहा है, अपना खुद का रिस्क टेकिंग कर रहा है. लेकिन एंटरप्रेन्योर बिजनेस के अंदर जो बंदे होते हैं क्रिएटिव, उनको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर. तो फर्स्ट डिफरेंस के हिसाब से एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ओनर होता है किसी बिजनेस का. लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एम्प्लॉय होता है किसी बिजनेस का. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल. एंटरप्रेन्योर रेजेस द रिक्विजिट कैपिटल हिमसेल्फ, whereas एंटरप्रेन्योर डज नॉट रेज एनी कैपिटल. अब कैपिटल की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर अपना वेंचर स्टार्ट कर रहा है तो खुद की कैपिटल लगाएगा. लेकिन एंटरप्रेन्योर भाई वो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्यों कैपिटल लगाएगा, तो वो कोई कैपिटल नहीं लगाता है. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम. एंटरप्रेन्योर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, whereas एंटरप्रेन्योर इज सेमी इंडिपेंडेंट. अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं अपना खुद के बॉस होते हैं यार, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं अपने वेंचर में. लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उतने डिपेंडेंट नहीं होते. लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉयज हैं, वो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, तो वो थोड़े से इंडिपेंडेंट होंगे. फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क टेकिंग. एंटरप्रेन्योर इज वन हु बियर्स फुल रिस्क ऑफ हिज बिजनेस, whereas एंटरप्रेन्योर डज नॉट बियर एनी रिस्क ऑफ बिजनेस. अब रिस्क की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, खुद का वेंचर में खुद का मालिक है, उसके ऊपर कोई है नहीं, तो जो भी रिस्क होगा ना, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस होंगे या फेलियर होंगे, तो उसका जिम्मेदार खुद एंटरप्रेन्योर ही होगा और वो खुद बियर करेगा सारे रिस्क को. लेकिन एंटरप्रेन्योर तो भाई एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, तो उसको क्या रिस्क की टेंशन है, वो तो काम करेगा, अपनी फिक्स सैलरी उठाएगा. फिफ्थ डिफरेंस है यहाँ पे गारंटी. एंटरप्रेन्योर guarantees payment to suppliers of inputs, whereas in case of entrepreneur no such guarantee is required to be given by entrepreneur. अब सप्लायर्स से जो गुड लेगा तो उसके प्रति एंटरप्रेन्योर गारंटी देगा कि हाँ भाई मैं इसके पैसे दे दूंगा. लेकिन एंटरप्रेन्योर के केसेस में ऐसा कोई पंगा ही नहीं पड़ता यार, वो एम्प्लॉय है, उसको क्या करना है, सप्लायर कौन है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो अपना काम करेगा ना बस, जिस फील्ड में उसको लगाया गया. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स. ये लास्ट डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर का. एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन शो एंड ही फ्रेम्स नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ हिज बिजनेस, whereas एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ही इज एन ऑर्गेनाइजेशन मैन एंड इज बाउंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड रूल्स. अब एंटरप्रेन्योर में क्या कहा गया है कि वो खुद के शो का खुद का मास्टर होता है, इसलिए वो अपने नॉर्म्स एंड रूल्स खुद क्रिएट करता है, ठीक है, खुद बनाता है, फ्रेम करता है नॉर्म्स एंड रूल्स बिजनेस में जो भी फॉलो होने वाले हैं. लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो एंटरप्रेन्योर या किसी ऊपर के लेवल ने रूल्स बनाए थे उसको फॉलो करता है. ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मैन होता है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ऑपरेट करना है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स होंगे तो इसको फॉलो तो करने पड़ेंगे. ओके, तो यही था आज की इस वीडियो में. होप आप समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट होता है एंटरप्रेन्योर का, क्या कंसेप्ट होता है मैनेजर का, और क्या कंसेप्ट होता है एंटरप्रेन्योर का, और क्या डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में और एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में. और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसको सही से करके जाना है, रट्टे लगाओ, कुछ भी करो, याद करो, लेकिन एग्जाम में आ गया तो लिख के आना है अगर ये वीडियो देख रहे हो आप एंड तक. होते हैं लैंड, लेबर, मनी, मशीन्स, ठीक है, सारे फैक्टर्स को वो एलोकेट करता है, इकट्ठा करता है और मैनेज भी करता है, क्योंकि उसने कुछ नया स्टार्ट करना होता है, इनोवेट करना होता है. सारा कुछ वो अपनी तरीके से सब कुछ करता है, जिसके लिए उसको रिस्क भी होता है, यानी कि
एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयरर भी होता है। वाई? क्योंकि क्या पता उसका न्यू मेथड है, वेज हैं, काम करें या ना करें। जो मैन है उसने हायर किए हैं अपने काम करवाने के लिए, वो भी अच्छे से काम करें, प्रोडक्टिव हो या ना हो। जो पैसा लाया वो डूब भी सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योर रिस्क भी बेयर करता है, सारा कुछ एलोकेट करता है, मैनेज करता है और रिस्क बेयर करता है। मैनेज और एलोकेट किसको करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। मेन ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेन न्यू सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग से काम करता है एंटरप्रेन्योर, इनोवेट, क्रिएट। अगर हम बात करें मैनेजर की, तो ऐसा उसने स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना होता है। मोस्टली हमें पता ही है मैनेजर की क्या पोस्ट होती है कि वो किसी कंपनी में जाके जॉब करता है, ठीक है। तो इसमें अगर जॉब कर रहा है तो उसका रिस्क कुछ भी नहीं होएगा। मैनेजर की प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? करता है, डिसीजन लेता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है ह्यूमंस को, सारे फैक्टर्स को। फाइनेंस मैनेजर अलग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऐसे सारे अलग अलग हो गए। वो सारा सिर्फ मैनेज करता है इन सबको। जो हायर किसने किया होता है? एंटरप्रेन्योर ने। चलो मेन डिफरेंस करते हैं। मैं आप साइड पे लेके आए बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी किस बेसिस पे डिफरेंस कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ। फर्स्ट है मोटिव। एंटरप्रेन्योर का क्या मोटिव होता है? टू स्टार्ट अ वेंचर, क्योंकि उसने इनोवेट करना होता है, सबसे स्टार्टिंग में सब कुछ करना होता है। लेकिन मैनेजर का क्या होता है? टू रेंडर द सर्विसेज, उसने अपनी सर्विसेज देनी होती है, कुछ नया नहीं करना होता। जो पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें जाके जॉब करनी होती है। तो इससे हमारा सेकंड पॉइंट निकल रहा है, उसका स्टेटस क्या हो गया एंटरप्रेन्योर का? कि वो ओनर हो गया क्योंकि उसने स्टार्ट किया है। लेकिन मैनेजर तो वहाँ पे काम कर रहा है ना, तो वो हो गया वहाँ का एम्प्लॉई। ओके, थर्ड पॉइंट है रिस्क बेयरिंग। ये तो हमारे पहले क्लियर हो गया है कि एंटरप्रेन्योर सारा रिस्क बेयर करता है क्योंकि वो सारा वेंचर स्टार्ट करता है। बेयर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क, कोई भी हो सकता है रिस्क। बट मैनेजर का क्या काम होता है? डज नॉट बेयर एनी टाइप ऑफ रिस्क, उसका कोई रिस्क नहीं होता। उसने काम जो बोला वो काम किया, उसके पैसे लिए, सैलरी ली, बस। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इनोवेट एंड क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू न्यू चीज़ें बनाएगा, कस्टमर्स को पसंद आएंगी, तभी तो वो उसकी सेल होएगी ना। तो उसने वो इनोवेट एंड क्रिएट करनी है न्यू थिंग्स। लेकिन मैनेजर ने क्या करना होता है? सुपरवाइज एंड इम्प्लीमेंट एंटरप्रेन्योर्स प्लान्स एंड आइडियाज़। अभी आइडियाज़ उसने क्रिएट कर लिए एंटरप्रेन्योर ने, उसको वर्क भी तो करवाना है ना। तो वो किसका काम होता है? मैनेजर का। अगर उसने खुद नहीं करना है एंटरप्रेन्योर ने, तो अपना काम आगे बढ़ दे, तो मैनेजर सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स। अगर जिसकी अपनी कंपनी होगी उसको प्रॉफिट ही मिलेगी ना, रिवॉर्ड एज ए रिवॉर्ड, वो सैलरी थोड़ा ना रहेगा। अब उसके प्रॉफिट जो भी फायदा होएगा वो सारा एंटरप्रेन्योर को मिलता है। लेकिन एज मैनेजर क्या होता है? एम्प्लॉई, तो उसको सैलरी मिलती है एज ए रिवॉर्ड, सैलरी, बोनस, कुछ भी मिल सकता है, वो एंटरप्रेन्योर सारा देता है। नेक्स्ट है फ्रॉडलेंट बिहेवियर। देखो, अगर एंटरप्रेन्योर का अपना ही बिजनेस है, अपने बिजनेस में थोड़ा ना कोई फ्रॉड वगैरह करेगा, अपना ही नुकसान होगा ना, अगर फ्रॉड कर भी लेगा। लेकिन मैनेजर का तो अपना बिजनेस नहीं है, वो चीट कर सकता है, वो बोलेगा मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से काम नहीं करेगा, तो नुकसान तो उसको ही होएगा ना, एंटरप्रेन्योर को। तो इसलिए मैनेजर चीट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेशन। ओके, एंटरप्रेन्योर का क्या पॉइंट है? ही हिमसेल्फ थिंक्स व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स टू मीट चेंजिंग डिमांड ऑफ कस्टमर्स। ऐसे सबकी डिमांड्स चेंज होती रहती हैं। पहले अगर मोबाइल्स में देख लो, पहले ड्यूल सिम नहीं थी, ऐसे धीरे धीरे करके कितनी इनोवेशन हो गई है ना। ऐसे जो डिमांड कस्टमर्स की आ रही हैं उसके बेसिस पे चेंजेस लेके आना वो खुद सोचता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन मैनेजर क्या करता है? ही सिंपली एग्जीक्यूट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर ने बोल दिया, उस जो प्लान्स बना दिए उसके ऊपर काम करना है, बस इतना काम है मैनेजर का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? ही नीड्स टू पॉजेस क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन लाइक रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, हायर अचीवमेंट, मोटिव, ऐसे वाली, मतलब कि उसको रिस्क लेना आना चाहिए। बिकॉज उसने सबसे सारा कुछ स्टार्टिंग में ही शुरू करना होता है। तो अगर वो रिस्क नहीं लेगा
कि अगर डिसाइड नहीं करेगा कि न्यू प्रोडक्ट कैसे बनाए, क्या पता वो बनाए और कस्टमर को पसंद आए ना आए, तो ये रिस्क तो उसको लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं रिस्क लेगा, प्रोडक्ट उसका पुराने जैसा ही रहेगा, तो उसकी सेल्स नहीं हो पाएंगे। तो उसको खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए, ऐसी वाली होनी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन ये वाली क्वालिटीज़ है तो वो बन सकता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन मैनेजर का क्या है, उसको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कुछ नॉलेज मैनेजमेंट में चाहिए, तभी ही इन एंटरप्रेन्योर उसको हायर करेगा ना उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ के लिए। तो ये थे डिफरेंस। Dear student, I hope you are really helpful for the YouTube video also and my lecture. Okay, so enjoy with this lecture and take your important notes. Okay, find out your own notes and studied on that. Okay, so thank you, bye bye, and take care. I hope you all clear the difference between entrepreneur and manager, because this is the most important topic for exam point of view and your future point of view also. Are you being a manager? Are you being an entrepreneur? And are you being an entrepreneur? Ask these questions to yourself and find out your own answer, and also decide you what you want to do, and then you should be prepare yourself on the basis of that. Here is clear difference: entrepreneur means what, entrepreneur means what, and manager means what. So you should be decide who wants to do for yourself. Okay, so thank you, bye bye, take care, stay home, safe life.